Hi everyone, welcome back to my channel Beautycoholic. If you are new here, my name is Manu Singh. I am a Jaipur-based freelance makeup artist, and right now I am working with MAC. So I know it's been a very long time जब मैंने वीडियो नहीं डाली and trust me, मैंने वीडियो बनाना बहुत मिस करा, but now the things are slightly different right now. I have to get back in my routine super soon, and so many things has been changed. I know this was a very long time. Last time I made a video of a smoky eye look with a nude lips, and you guys loved that video. And before that, I made a self makeup course. So in today's video, I am going to highlight some questions जो मुझे self makeup course के time पे या फिर उन videos में सबसे ज़्यादा questions पूछे गए हैं. And these are the most common questions जो basically हर beginner के mind में होते हैं. So I am going to pick up so many random questions. So quickly मैं उनको आंसर भी करूँगी. At the same time, अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन माइंड में रहता है, you can just let me know in the comment section. ठीक है. So ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, these all questions are related to my self makeup course. So उसी से related होगा. अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होता है, definitely you can let me know in the comment section. First question is, thanks a lot. This helps me a lot. I have a query. Please tell me. You said first to wash the face, right? I will use a face wash or normal water to wash the face. How do I know which face wash is best for my skin? Because till now I don't use any kind of face wash. So first of all, अगर आप water से rinse करते हो, then that is not sufficient for your skin to make it more cleaner. So first of all, just know your skin type, and skin type आपको पता लग जाता है as per the season, that you have oily skin, you have combination skin. Like या तो आपकी oily skin हो सकती है, या फिर आपकी dry skin हो सकती है, या फिर सेंसिटिव स्किन हो सकती है. अब ऑयली एंड ड्राई का कॉम्बिनेशन है तो फिर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है. तो अगर आपका कोई भी अगर आपको स्वेटिंग नहीं हो रही है, ऑयलिंग नहीं हो रही है, देन यू कैन गो विथ ऑल स्किन टाइप ऑफ फेस वॉशेज़ और क्लिनजर्स. एंड मार्केट में देयर आर सो मैनी फेस वॉशेज़ एंड क्लिनजर्स आर अवेलेबल फॉर ऑयली स्किन, बिकॉज ऑयली स्किन के लिए मेनली फॉर्मिंग क्लिनजर्स होते हैं या फिर थिक क्लिनजर्स होते हैं. एंड जो ड्राई स्किन होती हैं उनके लिए मेनली सूदिंग काइंड ऑफ जेल काइंड ऑफ फॉर्मूले वाले क्लिनजर्स होते हैं. सो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो. अदर देन दैट, इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन, then you can particularly go with those kind of cleansers जिनमें फ्रेगनेंस नहीं होती है, बिकॉज यही एक चीज़ें होती हैं जो आपके स्किन को इरिटेट कर सकती है इफ़ यू आर नॉट यूजिंग राइट फेस वॉश. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी, मैम आपने बोला था फिक्सर बीच में कर सकते हैं और सेटिंग स्प्रे लास्ट में करना है, अब आपने बीच में क्यों किया? सी, देर आर सो मैनी कन्फ्यूजन अबाउट सेटिंग स्प्रे एंड मेकअप फिक्सर. नाम से ही पता लग रहा है, सेटिंग स्प्रे इज़ टू सेट योर लेयर्स, सेट योर बेस, दैट यू कैन यूज़ बिफोर मेकअप, वाइल मेकअप एंड आफ्टर मेकअप. आफ्टर मेकअप आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू यूज़ अ मेकअप फिक्सर. Fixer is something which is going to fix your makeup, lock your makeup for very long time. एंड दोनों के फॉर्मुलेशन में एक माइनर सा डिफरेंस ये होता है कि सेटिंग स्प्रेज आर मेनली फॉर वाटर फॉर्मुलेटेड और सीरम फॉर्मुलेटेड और सीरम इन्फ्यूज काइंड ऑफ थिंग. एंड जो मेकअप फिक्सर्स होते हैं, दोज आर मेनली काइंड ऑफ एल्कोहल काइंड ऑफ फॉर्मूले, जो बेसिकली एक प्रॉपर ड्यूरेंट स्प्रे जैसे नहीं होते. इफ़ यू आर लुकिंग अप कि मेरा मेकअप 10 से 12 घंटे या उससे ज़्यादा टिके, then definitely you have to go with proper a makeup fixer which should have a good amount of alcohol. So my next question is going to be, ma'am, you said to use a foundation with the same, oh, if we want to look a fair or medium skin tone, it becomes gray after some time. However, when any makeup artist does it, doesn't it go gray? What is the mistake is this? Okay, first of all, you are using a wrong foundation shade. If you are a medium skin person, then go as per the medium skin tone. ठीक है. अगर आप मीडियम स्किन पर्सन हो एंड यू आर यूजिंग फेयर स्किन शेड, देन डेफिनेटली वो ग्रे होगा. एंड मेकअप आर्टिस्ट जब करते हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो कि आप पहले कलर करेक्शन कर लो वेयर एवर यू हैव एनी स्किन कंसर्न ऑन योर फेस, एंड देन यू कैन यूज़ अ स्लाइटली लाइटर शेड ऑफ योर फाउंडेशन, बट नॉट वेरी लाइटर. Like if I will compare MAC
फाउंडेशन, तो अगर आप NC30 के अराउंड पर्सन हो देन यू कैन नॉट यूज़ NC10 और NC15, यू कैन यूज़ अराउंड लाइक NC35 और NC25 विच इज़ क्वाइट सिमिलर। अगर आप जब भी अपना फाउंडेशन शेड चूज़ कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आपका फाउंडेशन शेड आपके स्किन के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट होना चाहिए। लाइक मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे सकती हूँ, एक टिप दे सकती हूँ। लाइक अपना फेस नॉर्मली टैन होता है, ठीक है, एंड अपना नेक एंड अपना चेस्ट जो है हल्का सा ब्राइटर होता है। सो व्हाट यू कैन डू, जो आपका नेक और चेस्ट का शेड है आप उस अकॉर्डिंग ही अपना फेस का जो फाउंडेशन है वो आप चूज़ कर सकते हो, ताकि जैसे आप कलर करेक्शन के बाद में आपका फाउंडेशन स्प्रेड करते हो देन वो इवन हो जाए। फर्स्ट टिप इज़ दिस। सेकेंड टिप, अगर आपको नहीं करना ब्राइटर, इफ़ यू डोंट प्रेफर दैट ब्राइटर थिंग, देन गो एज पर योर स्किन शेड के अकॉर्डिंग जाओ एंड देन you can slightly make it lighter from the center like your featured part, जिसमें आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो, और यू कैन यूज़ एनी कॉम्पैक्ट जिससे आपका बेस हल्का सा लाइट हो जाएगा, एट द सेम टाइम वो ग्रे भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेकअप। मैं मेकअप करती हूँ, मेरे अपर लिप्स से सारा मेकअप हट जाता है स्वेटिंग से। सो स्वेटिंग से मेकअप हटना इज़ वेरी नॉर्मल इफ़ यू आर नॉट प्रेपिंग योर स्किन वेरी वेल। एट द सेम टाइम अगर आपके पर्टिकुलर एरिया से मेकअप हट रहा है, लाइक मेनली कंप्लेन होते हैं नोज़ के ऊपर से एंड अपर लिप्स एंड देन नीचे वाले पोर्शन से, लाइक इन एट योर चिन पोर्शन। सो बेसिकली अगर वहाँ से आपका मेकअप हट रहा है दैट्स मीन यू आर नॉट प्रेपिंग योर स्किन वेरी वेल। एंड अगर आप प्रॉपर मेकअप प्राइमर यूज़ कर सकते हो तो विच इज़ काइंड ऑफ अ मैटिफाइंग प्राइमर, सो वो आपको यूज़ करना है। मैटिफाइंग प्राइमर एंड सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर वर्क्स बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेरी स्किन बहुत ड्राई है और मैं कितना भी मॉइस्चराइज़र कर लूँ फिर भी मेरी नोज़ पर ड्राइनेस रहती है। अगेन दिस इज़ योर स्किन कंसर्न। इफ़ यू हैव वेरी ऑयली स्किन और वेरी ड्राई स्किन तो आपको प्राइमर और स्किन प्रैप प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा बेटर करना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और आप बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो आपका मेकअप स्लिप ऑफ होता है, उसकी वजह से आपका मेकअप हटता है। सेम गोज़ विद द ड्राई स्किन। ड्राई स्किन में भी यही कंसर्न होता है कि अगर आप मॉइस्चराइज़र अच्छा नहीं लगा रहे हो और प्राइमर दैट शुड बी वेरी नाइस हाइड्रेटिंग वन एंड द मॉइस्चराइजिंग वन, तो आपको कुछ इस तरीके का प्राइमर यूज़ करना है विच शुड हैव हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ एंड यू कैन से स्मूथनिंग थिंग्स। सो उस कंडीशन में अगर आप मेकअप प्राइमर यूज़ करते हो तो आपके पर्टिकुलर उस एरिया से मेकअप नहीं हटेगा। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई मेनली गेट कि मेरा मेकअप जो है स्टे नहीं करता है, एंड इफ़ यू आर यूजिंग अ गुड मेकअप फिक्सर सो उससे भी आपका मेकअप नहीं हटेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ वी मिक्स अ येलो करेक्टर टू कूल शेड फाउंडेशन, उसको कवरेज कम हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप कोई सा भी ऐसा करेक्टर यूज़ कर रहे हो जो आप कूल शेड में मिक्स करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोन्स चेंज हो रही है और उसका अंडरटोन चेंज हो रहा है, इससे आपका कवरेज से कोई भी लेना देना नहीं है। फॉर्मुलेशन अगर आप सेम यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसीलर शुड बी डार्कर देन स्किन और लाइटर देन स्किन। सो बेसिकली अगर आप डार्कर शेड यूज़ कर रहे हो विच इज़ 1 to 2 शेड डार्कर, सो या तो वो आपका कॉन्टूरिंग शेड हो सकता है जिसमें अगर आपका ब्राउन टोन्स बहुत ज़्यादा ऐड हो जाते हैं और माइट बी रेड टोन्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डार्कर टोन्स यूज़ करते हो तो वो आपका कलर करेक्शन में कंसीडर किया जाता है जिसमें थोड़ा सा पीच या फिर ऑरेंज अंडरटोन होना चाहिए। अगर आप लाइटर शेड कंसीलर यूज़ करते हो विच इज़ मेनली फॉर ब्राइटनिंग पर्पस, जो आपके स्किन के पर्टिकुलर पार्ट को और फेस के पर्टिकुलर पार्ट को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है। अपने आईज पर करेक्ट और कंसीलर यूज़ नहीं किया, पहले डायरेक्ट ब्लैक काजल अप्लाई किया। सो यहाँ पर मैं स्मोकी लुक क्रिएट कर रही थी तो मैंने पहले आई करना प्रेफर करा। पहले आप जब भी स्मोकी लुक करते हैं तो उसमें फॉल आउट होने का इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से आपका बेस ख़राब ना हो तो आप अपना स्मोकी लुक के अंदर पहले अपना आईज कंप्लीट कर सकते हो, फिर उसके बाद में आप कलर करेक्शन या स्किन प्रेप आप पहले कर सकते हो और फिर कॉम्प्लेक्शन उसके बाद में कर सकते हो। Whenever I use foundation, if my face expose sunlight, it looks darker than my skin tone. Okay, so again यहाँ पे skin prep हो सकता है, the sunscreen you are using, the mainly आप ऐसा कोई skin prep में product लगा रहे हो, like serum आप ऐसा लगा रहे हो जो आपके sunlight में जाते ही डार्क हो जाता है या फिर वो रिएक्टिव हो जाता है। the good primer you are not using, there are chances फाउंडेशन शेड भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, या तो अगर आप लाइटर फाउंडेशन शेड लगा लोगे तो वो भी आपका ग्रे हो जाएगा। तो स्किन प्रेप बहुत मैटर करता है, प्राइमर बहुत मैटर करता है एंड द फाउंडेशन शेड यू आर पिकिंग वो भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑरेंज करेक्टर को ऊपर हमें अपने डार्क सर्कल्स के अप्लाई करना है। येस,
ऑरेंज करेक्टर आपको सिर्फ तब यूज़ करना है व्हेन यू हैव वेरी 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 प्रोमिनेंट अंडर आइज, अदरवाइज आपका डार्कर कंसीलर से भी काम हो जाएगा। और ऐसा डार्कर शेड कंसीलर जिसमें हल्का सा पिंकिश या पीच टोन होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपका कलर करेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अदर देन दैट अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तभी आपको ऑरेंज यूज़ करना है, अदरवाइज आपका डार्कर से ही काम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम कंसीलर शेड क्या है नंबर इफ़ थोड़ा डार्क सर्कल्स को फिर कंसीलर लगाना है। ओके, सो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको ऐसे स्पेसिफिक शेड्स नहीं बता सकती हूँ, बस आपको आइडेंटिफाई करना होगा बाय गेटिंग योर एनी प्रोफेशनल एडवाइस एट एनी रिटेल स्टोर, जिसमें आपको ज़्यादा बेटर पता लगे। एंड जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो मेकअप की, फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहली बार आप कर रहे हो, नेवर डू ऑनलाइन, जस्ट गेट एनी प्रोफेशनल एडवाइस, तब आपको ज़्यादा बेटर अपने टोन्स एंड अंडरटोन्स के बारे में पता लगता है। इस कंसीलर नेसेसरी आफ्टर कलर करेक्टर? ऑनेस्टली कलर करेक्टर आप कौन सा शेड पिक कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। लाइक इफ़ यू आर यूजिंग एनी पीच और ऑरेंज, तब आपको कंसीलर यूज़ करना ही पड़ेगा टू हाइड दैट। अदर देन दैट इफ़ यू आर यूजिंग एनी कंसीलर जो हल्का सा डार्कर है विच हैज़ स्लाइटली पीच, तो आपका फाउंडेशन एंड देन कॉम्पैक्ट से ही काम हो जाता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा हायर में नहीं जाना पड़ेगा। इन केस इफ़ यू आर रिक्वायरिंग फॉर वे मोर हायर कवरेज, तब आप अपना कंसीलर यूज़ कर सकते हो विच माइट बी योर अ ब्राइटनिंग कंसीलर शेड। कैन एलोवेरा बी अप्लाइड एज अ प्राइमर फॉर नॉर्मल और ड्राई स्किन? नो डियर, ऑनेस्टली आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हो जस्ट फॉर सम जुगाड़, बट ट्रस्ट मी इट रियली मैटर्स कि आप अपना स्किन प्रेप कैसे कर रहे हो। तो जेन्युइनली जो अच्छे स्किन प्रेप प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें अच्छा इन्वेस्ट करो, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा मेकअप में। ड्राई स्किन पर एस्टे लॉडर लगा सकते हैं? डेफिनेटली एस्टे लॉडर इज़ वन ऑफ माई बेस्ट एंड फेवरेट फाउंडेशन एंड दैट वर्क सो गुड फॉर ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और ऑल स्किन टाइप, ट्रस्ट मी। एंड द फॉर्मूला हैज़ बीन चेंज नाउ एंड वो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। आई हैव ट्राइड दैट फॉर्मूला एंड आई वुड लव टू एड इन माई वैनिटी। सो एस्टे लॉडर का जो फॉर्मूला है वो अभी न्यूअर वाला चेंज हो गया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो और भी ज़्यादा अच्छा है एंड आई लव दैट फॉर्मूला। एंड डेफिनेटली अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, एस्टे लॉडर का न्यूअर फॉर्मूला अपनी वैनिटी में ज़रूर ऐड करो। कुड यू प्लीज़ रिकमेंड गुड ग्लू फॉर आई लैशेज़, हाउ टू अप्लाई ग्लू? सो बेसिकली गुड ग्लू की अगर मैं बात करूँ, करेंटली आई एम यूजिंग PAC का जो आई लैश ग्लू आता है विच वर्क सो गुड फॉर आई लैशेज़। एट द सेम टाइम यूरो पेरिस का भी काफ़ी अच्छा आता है, यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। कैसे अप्लाई करना है, यू कैन टेक एनी ब्रश और एनी प्रिसाइज काइंड ऑफ थिंग, जिससे आप अपने जो आपका लैश लाइन होता है, जो फॉल्स लैशेज़ होती हैं, उसका जो लैश लाइन बना हुआ होता है, जो बॉर्डर होता है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। आफ्टर कटिंग दैट लैशेज़ जस्ट मेक दैम ड्राई 50% एंड देन यू कैन स्टिक on. Okay guys, so that's it for the today's video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो then just do a like this video, and अगर आपको इससे भी अच्छी और वीडियोस देखनी है just do subscribe to my channel so that आप continuously updated रहो for the newer videos और upcoming videos.